Govinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Nitya Pravishnu Vishnu Pada Stotar Shatashi Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Thakur Prabhupada ki Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasari Gaur Bhaktivinoda ki Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kund Giri Govardhan ki Vrindavan Dham ki Mayapur Dham ki Gangamai ki Yamunamai ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Sabhavata Bhaktivinoda ki Shri Yuga Dharma Harinam Sankirtan ki Viranga ki Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai Gaura Premanandi. Hari Hari Bol. All glory to the Samati devotees. Hare All Krishna. glory to the Samati devotees. Hare Krishna. All glory to the Hare Samati Krishna. devotees. Glory to Shri Guru Shri Gaura. Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, reading today from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 10, text 5. Is it 10 or 11? They told me 11. 15, right? Yeah, okay. So 10 here.
First Canto, chapter 15. पहला 5. पहला स्कंद 15 अध्याय 5वां श्लोक। I'm very happy to be here for the first time. मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। I see all the enthusiastic Vaishnavas. तो सब उत्साही भक्तों को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। So wonderful that we can represent Srila Prabhupada here in Vrindavan Dham. ये बहुत अद्भुत है कि कैसे हम श्रील प्रभुपाद को यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वृंदावन में। Vrindavan, you will find in Vrindavan every philosophy and every possible permutation of every philosophy. तो वृंदावन में आपको सभी प्रकार के सिद्धांत मिलेंगे और उन सिद्धांतों के और भी क्या विकार हो सकते हैं वो भी मिलेंगे। So we have to present what our acharyas have presented. तो हमें वो प्रस्तुत करना है जो हमारे आचार्यों ने प्रस्तुत किया है। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was very strong in his determination to speak Krishna consciousness as it is. तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही निष्ठावान थे, मजबूत थे कृष्ण भावनामृत की सिद्धांत को बताने के लिए। Just like yesterday we read in the 11th canto about the dangers of taking Krishna consciousness cheaply. कल हमने 11वें स्कंद में पढ़ा कि कैसे क्या खतरे हो सकते हैं जब आप कृष्ण भक्ति को बहुत ही सस्ते में लेते हैं। So, reading from text 5. Arjuna vacha. अर्जुन Vanchitoham Maharaja Harina Bandhu Rupina Yena Mam Pavitam Tejo Deva Vishmatpanam Mahat Vanchitoham Maharaja Harina Bandhu Rupina Yenamam Pavitam Tejo Deva Vishmapanam Mahat Vanchitoham Maharaja Harina Bandhu Rupina Yenamam Pavitam Tejo Deva Vishmapanam Mahat. Vacha Chitama Maharaja Harina Rupina Vishmapanam Mahat. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Vishmapanam Mahat. Vanchito Maharajo Harina Bandhurupina Yenamam Pavitam Tejo Deva Vishmapanam Mahat. Rupina Eram Pavitam Dejo Vishmapanam Mahat. Vacha Achito Maharajo
हरिणा बन्धुरूपिणा येन मम पवित्रं तेजो देवविस्माकरं महत् वैष्णवी वाचा वञ्चितोऽहं महाराजा रूपिणा येन मम पवित्रं तेजो देवविस्माकरं महत् वाचा वञ्चितोऽहं महाराजा हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपृतं तेजो देवविस्वापनं महत् अर्जुनवाचा अर्जुनवाचा अर्जुन ने कहा वंशिता त्यक्त अहम मैं महाराज हे राजा हरिणा भगवान द्वारा बंधुरूपिणा घनिष्ठ मित्र रूपी येन जिससे मैं मेरा अपहृतम छीना गया है तेजा पराक्रम देवा देवता विस्मापनम आश्चर्यजनक महत् अत्यधिक प्रबल। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रह गया है। तात्पर्य, भगवद गीता 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कोई चाहे कितना भी शक्तिशाली तथा संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक मामलों में ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश स्वरूप समझो। अतएव कोई भी स्वतंत्र रूप से भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिवान नहीं हो सकता। जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं तो न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं अपितु वे अपने पार्षद भक्तों को अपना अवतारी संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। भगवद गीता 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है कि भगवान तथा उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं, किंतु जहां भगवान विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं को स्मरण रखते हैं वहीं पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब भगवान धरा से अंतर्धान होते हैं तो वे अपने साथ सारे पार्षदों को ले जाते हैं। भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी यह भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी, किंतु जब उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां छीन ली गई, क्योंकि स्वर्ग के वासियों को भी चकित करने वाले अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। वह उनके भगवत धाम वापस जाने के लिए निमित्त नहीं थी। यदि अर्जुन जैसे परम भक्त से या स्वर्ग के वासियों से भगवान की दी हुई शक्ति छीन सकते हैं तो उन क्षुद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नग्न है। अतएव शिक्षा ये मिलती है कि भगवान से प्राप्त शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं। अतएव ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग ये है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाया जाए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य धनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विचेतनमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा
मह्यं ददति स्वापदान्तिकं नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष ठीक है शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे. So, this verse begins Vanshitaha, which Srila Prabhupada translates as left by him. As led by him. Left by him. तो ये जो श्लोक है वो वंचित शब्द से शुरू होता है जिसका मतलब है त्यक्त त्याग कर देना. But actually, technically it means stolen or cheated. लेकिन तकनीकी अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब है जो चुरा लिया गया हो. So, Arjuna is saying, Krishna cheated me. तो अर्जुन एक तरह से कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे धोखा दिया है, चुरा लिया मेरे से कुछ. This is possible for an intimate associate of the Lord. ये जो भगवान के अंतरंग पार्षद हैं उन्हीं के लिए संभव है. In the Shikshastika, Lord Chaitanya says, Lampataha. शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं लंपट. Krishna is a cheater. कृष्ण धोखेबाज है. And in Bhagavad Gita, Krishna declares himself the greatest cheater. तो भगवद गीता में कृष्ण स्वयं को बोलते हैं कि वो सबसे बड़े धोखेबाज है. He says that if you want to cheat, then I am better than you. तो कहते हैं कि अगर आप मुझे धोखा देना चाहते हो तो मैं आपसे कहीं बेहतर हूँ. Krishna must be the best cheater because he's the best everything. क्योंकि कृष्ण सबसे बड़े धोखेबाज, सबसे उत्तम धोखेबाज होने चाहिए क्योंकि वो सब चीजों में उत्तम है. Because just like Krishna, he attracts us to Krishna consciousness and then he cheats us. क्योंकि जैसे कि कृष्ण हमें कृष्ण भावनामृत की तरफ आकर्षित करते हैं और फिर हमें धोखा देते हैं. And Prabhupada, in one sense, is following in his footsteps. तो देखा जाए प्रभुपाद एक तरह से उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं. He says, chant and be happy. तो प्रभुपाद ने हमसे कहा जप करिए और प्रसन्न रहिए. But sometimes people are chanting for 20 years and they're still suffering. तो कई बार देखते हैं भक्त लोग 20 साल से माला कर रहे हैं लेकिन अभी भी कष्ट झेल रहे हैं. So Srila Prabhupada said one time, actually I am cheating you. तो प्रभुपाद एक बार बोलते हैं कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ. I am giving you the real happiness, but you must make the effort. मैं आपको वास्तविक सुख तो दे रहा हूँ लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा. Just like Bhaktivinoda Thakur says, if you just chant the holy name once, you will feel ecstasy. जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर आप एक बार हरि नाम ले लेंगे तो आपको एक्सटेसी का अनुभव, आनंद का अनुभव होगा. Which is true if you chant with no offenses. यह देखा जाए तो वास्तविक में ये सत्य है लेकिन अगर आप अपराध रहित होकर जप करें. So, but we have to come to that point. तो हमें उस बिंदु तक आना पड़ेगा. We can't expect the Ajamil program. हम ये नहीं आशा कर सकते कि अजामिल जैसा हमारे साथ कुछ हो जाएगा. That the best way to chant without offenses is to have at least 20 sons. कि बिना अपराध के नाम लेने के लिए कम से कम 20 पुत्र पैदा करें. I'll name one Govinda, Narayan, Krishna. तो उनके ऐसे नाम रख देंगे अलग अलग, गोविंद, नारायण, राम, ऐसे करके. Certainly I can remember one of them at the time of death. तो हो सकता है कि किसी एक को तो याद करूंगा ही मरने के समय. We had one devotee in Mexico. This was his philosophy. तो मैक्सिको में एक ऐसे भक्त है, ये उनका सिद्धांत यही है. And he said his goal was to have 20 sons. तो उन्होंने कहा उनके जीवन का उद्देश्य है 20 पुत्र पैदा करना. He only made it to 14. लेकिन 14 तक ही कर पाए. And he wore out 3 wives. Wore them out. They couldn't do anymore. हाँ, तो 3 पत्नियां, मतलब वो फिर जो बच्चा नहीं दे सकती वहां तक, मतलब उस स्टेज तक पहुंच गई थी बात कि अब वो बच्चा नहीं कर सकती थी. And unfortunately when he left this world, he didn't remember the name.
और बदकिस्मती से जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो किसी का नाम याद नहीं है। So much effort, so much effort. कितना प्रयास किया उन्होंने। Uh, राधा गोविंद देव की जय, श्री गौर निताई की जय। Hare Krishna. So Arjuna is saying, how could because Yudhishthira Yudhishthira has practically figured out that Krishna has left this planet. तो एक तरह देखा जाए कि युधिष्ठिर महाराज को पता तो चल गया था कि कृष्ण ने ये जो धराधाम छोड़ दिया है, Because he's seen so many bad omens. क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अपशकुन देखे थे। But he's hoping that maybe something else. लेकिन फिर भी वो आशा कर रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ शायद। Just like right now in this world, there are many bad omens. अभी देखा जाए संसार में बहुत सारे अपशकुन हैं, So many wars, so many conflicts. बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत सारे द्वंद्व हो रहे हैं। But we don't take them, we take them as the disappearance of Krishna from the social fabric. तो हम उसको कैसे देखते हैं कि कृष्ण जो है, जो हमारे समाज से जा चुके हैं, अप्रकट हो चुके हैं। People are giving up morality, ethics. तो लोग जो है नैतिकता के सिद्धांतों को छोड़ रहे हैं। What to speak of Krishna consciousness? कृष्ण भावनामत की क्या बात की जाए फिर? But a devotee always sees the hand of the Lord. लेकिन जो भक्त है वो हमेशा कृष्ण का हाथ हर चीज में देखता है। Srila Prabhupada said, we don't care for war. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम युद्ध की परवाह नहीं करते। And he said that actually war can be very favorable for preaching. तो प्रभुपाद कहते हैं कि युद्ध जो है वो प्रचार करने के लिए बहुत ही एक अच्छा माध्यम हो सकता है। Because the devotee always sees that everything, Krishna arranges everything in the life of a devotee for their benefit. क्योंकि भक्त जानता है कि भगवान जो भी उसके जीवन में करते हैं उसके लाभ के लिए होता है। Tatenukampam susamikshmana bhunjani bhaktam vipakam. That a devotee can only see Krishna's mercy in everything. तो जो भक्त है वो कृष्ण की कृपा को हर चीज में देखता है। And so Arjuna, he says that, oh Hari, Hari means you have taken away. तो अर्जुन यहाँ पर कृष्ण को कह रहे हरि, हरि का मतलब जो हर लेते हैं। And Bandhu Rupina, I am an intimate friend. बंधु रूपिना की मैं आपका घनिष्ठ मित्र हूँ। In the previous verse, he says that he remembered Krishna as his well-wisher, benefactor, intimate relative, and chariot driver. तो इसके पिछले श्लोक में अर्जुन भगवान को एक सखा के रूप में और सौहृद के रूप में और एक सारथी के रूप में स्मरण करते हैं और बड़े भाई के रूप में स्मरण करते हैं। Bhishma said the same thing to the Pandavas when he was lying on the bed of arrows. भीष्मदेव ऐसा ही कुछ पांडवों को बताते हैं जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। That he said that yam manyase matuliyam, that you're thinking that Krishna is your cousin. कि वो कहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि कृष्ण आपके चचेरे भाई हैं, कजन। And you're thinking that he's your intimate friend, Priya Mitram, and or you're thinking that Suhitamam, that he is your close associate. तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके प्रिय मित्र हैं या आपके निकट पार्षद हैं। You think that he is Saratim, that he is your chariot driver. और आप सोचते हैं कि वो आपके सारथी हैं। You think that he is Sachivam, that he is the messenger, or Dutam, the messenger, or the counselor. तो आप ये सोचते हैं कि वो एक शांति दूत हैं आपके। But he's actually the supreme personality of God. लेकिन वास्तव में वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। But Arjuna doesn't want to think. Even Arjuna, when he was seeing Krishna in the universal form, he felt uncomfortable. लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं देखना चाहते। अर्जुन ने जब भगवान का विराट रूप देखा तो बहुत ही ज्यादा वो घबरा गए थे। He wanted to see Krishna with two arms. वो कृष्ण को दो भुज वाले रूप में देखना चाहते थे। Krishna first showed him four arms. कृष्ण ने पहले चतुर्भुज रूप दिखाया।
so that he would remember, because actually Arjuna knows Krishna in Mathura and Dwarka. क्योंकि जो कृष्ण है वो जो अर्जुन है वो कृष्ण को मथुरा और द्वारका वाले रूप में जानते हैं. So he doesn't know Krishna in Vrindavan. अर्जुन जो है कृष्ण को वृंदावन वाले रूप में नहीं जानते. So Krishna is revealing that even though you see me with 2 hands, I also have 4 arms. तो इसलिए वहाँ दो हाथ दिखा रहे हैं, साथ में ये भी बता रहे हैं कि मेरे चतुर्भुज 4 हाथ भी हैं. So, and then he says that this person who is, where all these things to me has now left me. तो इसे यहाँ वो बोल रहे हैं कि ये सब चीजें, ये जो अब मेरा उन्होंने त्याग कर दिया है ये सब चीजों ने. And he's taken away all of my potency. और कृष्ण ने मेरी सारी शक्तियां मेरे से छीन ली हैं. That potency which was so great that even the demigods were astounded. और वो मेरा जो पराक्रम ऐसा था जो देवताओं को भी चकित करने वाला था. Vismapanam Mahat, they were extremely astounded. तो बहुत ही ज्यादा चकित करने वाला था. So the main, of course, Srila Prabhupada begins his purport by quoting Bhagavad Gita, that this Smapanam Sattvam, that this Sattvika, that this all these potencies are Srimad Ujitam E Baba. They are and everything you see, wonderful, Srila Prabhupada expands it here. Powerful, opulent, wealth, strength, beauty, knowledge. Anything you see that is admirable in this world is actually just coming from me, and only a small part. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य की शुरुआत में ही भगवद गीता के 10वें अध्याय से उद्धृत करते हैं कि चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली हो, जैसे उसके पास संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान या कोई भी ऐसे ऐश्वर्य क्यों ना हो जो भौतिक समाज में बहुत ही सराहनीय हो, लेकिन वो भगवान की पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश स्वरूप ही है. Teja Amsa, just a small portion. बहुत ही छोटा तुच्छ अंश है. Of my, otherwise, Krishna is saying that we're so amazed by seeing big mountains or expanded ocean, we think it's so great. क्योंकि कृष्ण कहते हैं हम अक्सर ये विस्मित होते हैं देखते, बड़ा समुद्र को देख के, बड़े चट्टान को देख कर विस्मित होते हैं. So if you multiply that millions and millions of times, you get maybe 1 drop of Krishna's potency. अगर ऐसी चीजों को आप लाखों गुणा कर देंगे तो भी जो निकलेगा वो भगवान की शक्ति का अंश मात्र ही होगा. So this, how Krishna, Srila Prabhupada mentions that this is not specific to Arjuna, this is everyone's situation. तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि सिर्फ ये अर्जुन की स्थिति नहीं थी, हम सबकी यही स्थिति है. And Srila Prabhupada says, therefore, the lesson here is that no one should be proud of the powers that they have. तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि सीख ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी शक्तियों का घमंड नहीं करना चाहिए. Buddhi buddhi matam asmi. Krishna says that of intelligent people, I am the source of that intelligence. कृष्ण कहते हैं कि जो भी बुद्धिमान लोग हैं उनकी बुद्धिमत्ता का जो स्रोत भी मैं ही हूँ. Balam balavatam chaham, of strength, I am the source of that strength, which is kama raga vivarjitam, which is devoid of passion and devoid of material elements. तो जो बलशाली लोग हैं उनका बल भी मैं ही हूँ, ऐसा बल जो काम और राग से बिल्कुल मुक्त है. So everything is coming from Krishna. सब कुछ कृष्ण से ही आ रहा है. Just like punyo gandham pratibhyam, that Krishna says, I am the original fragrance of the earth. ये कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी की गंध जो वास्तविक गंध मैं ही हूँ. And Krishna demonstrates this practically. और ये व्यवहारिक रूप से कृष्ण प्रदर्शित करते हैं. In one cubic meter of earth,
a rose can produce such a wonderful fragrance. एक अगर घनाभ जितने क्षेत्रफल में एक जो गुलाब का पौधा लगता है वो कितनी अच्छी खुशबू देता है. Especially the roses here in Vrindavan, they're very special. और यहाँ के गुलाब जो वृंदावन के गुलाब है बहुत ही स्पेशल हैं. They're empowered. वो शक्तिशाली हैं. So पावर. the mosquitoes here are empowered. और यहाँ के मच्छर भी शक्तिशाली हैं. So, but scientists, with all their technology, they cannot take 1 cubic meter of earth and produce the smell of a rose. लेकिन वैज्ञानिक जितनी भी शक्ति लगा लें फिर भी एक घनाभ जितने क्षेत्रफल में खुशबू पैदा नहीं कर सकते जैसे गुलाब की खुशबू होती है. They can't even take 100 square meters and produce the smell of a rose. अगर वो 100 स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल का भी ले ले कोई जगह तब भी ऐसा नहीं कर सकते. Just like many years ago, when Prabhupada was here, one of our leading devotees, there was a big scientific convention in Sri Lanka. तो जब प्रभुपाद जी यहाँ पर थे तो एक बार उस समय बहुत बड़ी वैज्ञानिक स्तर पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कन्वेंशन हुई थी श्रीलंका में. So he had one scientist who invited him. He said, "Please come to the conference." तो एक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उनको आमंत्रण दिया आने के लिए. So because he was a devotee, they honored him. They said, "So you can speak first." But he was thinking, "I'm not a scientist. I don't know. What am I going to say?" तो क्योंकि वो भक्त थे तो वैज्ञानिकों ने उनको कहा कि आप पहले बोलिए, लेकिन वो कुछ जानते नहीं तो उनको पता था मैं कोई वैज्ञानिक तो हूँ नहीं तो उनको समझ नहीं आता क्या बोलूं. So he thought about it. He was thinking about it, and then he said, "So I'm inquiring from all of you. You're the great scientists. तो उनको समझ नहीं आ रहा था. उन्होंने सोचा क्या बोलूं तो उन्होंने प्रश्न किया सभी वैज्ञानिकों को, आप सभी वैज्ञानिक हैं तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ. Can any of you produce an egg? Egg, some yellow color, some white color. Can you produce an egg? Okay. तो उन्होंने वैज्ञानिकों से पूछा क्या आप अंडा बना सकते हैं, कोई भी अंडा पैदा कर सकते हैं. And they all looked at each other. What's he talking about? तो सब वैज्ञानिक एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है. He said, "So please, anyone who can do that, raise your hand." तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऐसा कर सकता है अपना हाथ खड़ा करें. And nobody raised their hand. तो जो एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे. And he said, "Therefore, my proposal is that we give the Nobel Prize to the chicken." तो उसने कहा, भक्त ने कहा कि इसलिए मेरा ये प्रस्ताव है कि जो नोबेल प्राइज है वो मुर्गी को देना चाहिए. Because the chicken can do something none of you can do. क्योंकि मुर्गी ऐसा कुछ कर सकती है जो आप में से कोई नहीं कर सकता. So everyone didn't know what to do. They all stood up and clapped. तो उनको कुछ समझ नहीं आया तो सब खड़े होकर उन्होंने तालियां बजाई. So this is how Krishna gives his devotee intelligence. तो इस प्रकार से कृष्ण जो है अपने भक्त को बुद्धिमत्ता देते हैं. But he can also take it away. और लेकिन वो उसको वापस भी ले सकते हैं. And therefore, whatever Krishna gives us, we have to be very careful to use it in his service. तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए. कृष्ण हमें जो भी प्रदान करें वो हम कृष्ण की सेवा में लगाएं. Just like Dhruva Maharaj, he wanted to have a kingdom greater than that of his grandfather. जैसे कि ध्रुव महाराज को साम्राज्य चाहिए था अपने भी जो ग्रेट ग्रैंडफादर परदादा जैसे भी बड़ा. That means he wanted something greater than the universe. इसका मतलब वो ब्रह्मांड से भी बड़ा कुछ चाहते थे. We may want a big house or a nice car, but his ambition was quite a bit larger. तो हो सकता है हमें एक बड़ा घर चाहिए, एक बड़ी कार चाहिए, लेकिन अगर ध्रुव महाराज का देखें तो उनकी जो आशा थी वो तो बहुत ही बड़ी थी. We may think, let me learn Sanskrit and become a great scholar. हो सकता है हम ये कहें मुझे संस्कृत सीख के मुझे एक बड़ा एक स्कॉलर बनना है. Then I'll show everyone how intelligent I am. तो मैं सबको फिर दिखाऊंगा, देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ. So he said, but then when he got the darshan of the Lord, he said that stana bilashita tapasi stito ham, that I performed such severe austerities, desiring to have a great position greater than the universe. तो उन्होंने जब भगवान के दर्शन हुए उनको
तो उन्होंने कहा कि मैंने इतनी सारी घनघोर तपस्या की किसके लिए, ताकि मुझे इस ब्रह्मांड से बड़ा साम्राज्य मिले. From Paptavam Deva Munindra Guyam. No, something that even I performed austerities and sacrifices greater than the demigods, greater than the great sages or the rulers of this world. तो कहते हैं मैंने तपस्या की देवताओं से भी भीषण तपस्या, या कोई भी तपस्वी जो तपस्या कर सकता है उससे भी ज्यादा भीषण तपस्या की. But then I saw the beauty of your transcendental form. फिर मैंने आपके दिव्य रूप का दर्शन, सौंदर्य का दर्शन किया. Just like when we see the beauty of the deities, it defeats all beauty. जैसे कि हम अर्चा विग्रह की सुंदरता देखते हैं तो ये सुंदरता सभी प्रकार की सुंदरता को परास्त कर देती है. Kacham Vachinvan api divya ratnam. I was looking for something I thought was very beautiful, but now I have found the most beautiful gem, the beauty of your transcendental form. तो कहते मैं कुछ सुंदर चीज की तलाश में था, लेकिन जब मैंने आपके दिव्य रूप का दर्शन किया तो आपसे सुंदर और कोई भी वस्तु नहीं हो सकती. I was looking for great power, but by the touch of your conch shell, I can see the greatest power. मैं शक्ति चाहता था, लेकिन आपके शंख के स्पर्श मात्र से मैं समझ गया हूँ कि आपसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है. And therefore, Swamin Gitarto Varam Nayache. That therefore, I don't want any benediction from you. You have given me the greatest benediction. वरम न याचेत, इसलिए अब मुझे कोई भी वरदान आपसे नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मुझे सबसे सर्वोच्च वरदान दे दिया है. So this is how a devotee thinks. इस प्रकार भक्त इस प्रकार से सोचता है. A devotee is simply interested in whatever Krishna gives. तो जो भक्त है जो भी कृष्ण देते हैं उसी में संतुष्ट रहता है. Srila Prabhupada wrote one letter, and one devotee was saying, asking Srila Prabhupada, I would like to do this, I would like to do that. He was many aspirations. तो एक भक्त ने प्रभुपाद को पत्र लिखा था जिसमें वो लिखा कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ. उसके बहुत सारे करने कई प्रकार के कहा करने की इच्छा थी. And Prabhupada said, a devotee only wants a little prasadam and a little service. तो प्रभुपाद ने उसको उत्तर दिया, लिखा कि भक्त को सिर्फ दो चीजें चाहिए, थोड़ा सा प्रसाद और थोड़ी सी सेवा. If Krishna gives more, then we accept it. लेकिन अगर कृष्ण और इससे ज्यादा देते हैं तो हम उसको स्वीकार करते हैं. But we're not demanding anything from Krishna. लेकिन हम कृष्ण से कोई याचना नहीं करते हैं. But if the spiritual master requests us to do something, then we have to work very hard to get it. लेकिन अगर आध्यात्मिक गुरु हमसे कुछ प्रार्थना करते हैं कि कुछ करने के लिए, तो फिर हमें बहुत प्रयास करना चाहिए उस चीज को पूर्ण करने के लिए. Because we know that this is the mercy of the Lord descending. क्योंकि हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान की कृपा जो है वो आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से आ रही है. Trinaya karunya gana ganatvam. Just like a rain, it's not just a little bit of mercy, it is a monsoon of mercy. तो ये कोई छोटी मोटी कृपा नहीं है, ये कृपा रूपी मानसून है. Just like we have to wait, all year long for 3 months for monsoon. जैसे हम पूरा साल प्रतीक्षा करते हैं उन 3 महीनों के लिए जब मानसून आती है. But by the mercy of Sri Guru, we can have daily monsoon. लेकिन गुरु की कृपा से रोज ही हम मानसून का आनंद ले सकते हैं. And a monsoon of mercy. मानसून की कृपा रूपी मानसून. This is the promise that Vishwanath Chakravarti Thakur has given us. ये एक वचन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दे रहे हैं इस प्रार्थना में. We just have to become a worthy recipient. हमें बस क्या बनना है कि हम एक योग्य धारक बनना है उस कृपा का. And a worthy recipient means I give all credit to my spiritual master and the parampara. तो योग्य धारक का मतलब क्या है कि मैं जितना भी उसका उस सेवा का जो पारितोषिक है वो मैं गुरु और अपनी परंपरा को देता हूँ. But when you take that credit for yourself, then this is what happens. लेकिन उसका पारितोषिक अगर आप खुद अपने पास रखते हैं तो ये होता है जो इस श्लोक में बताया है. Krishna takes away the potency. कृष्ण फिर सब छीन लेते हैं. Just like many years ago, right after Srila Prabhupada left, so devotees started, and even while Prabhupada was still here,
with us physically. The devotees were inventing different ways to collect Lakshmi so they could distribute more books. तो जब प्रभुपाद के जाने के कुछ समय बाद और प्रभुपाद के समय होते हुए भी जब यहाँ पे थे तो भक्त लोग बहुत ही अलग अलग तरीके इजाद कर रहे थे अलग अलग प्रकार से लक्ष्मी कलेक्ट करने के लिए. So the devotees had made one album, one record, and Prabhupada was chanting and George Harrison was chanting, so it was very popular record. तो भक्तों ने एक रिकॉर्ड मतलब एक कैसेट बनाया जिसमें प्रभुपाद जी जब कर रहे हैं जॉर्ज हैरिसन जब कर रहे हैं तो बहुत ही वो पॉपुलर था उस समय. So the devotees said to Prabhupada, can we sell this record and then we get more Lakshmi? It's easier to get Lakshmi like that and we can distribute more books. हाँ, तो भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद किताबों के वितरण से अधिक जो आसान ये है कि अगर इस रिकॉर्ड को एल्बम को बेचें तो उससे हम ज्यादा धन इकट्ठा कर सकते हैं. Actually, that record was the way that Srila Prabhupada's Bhagavad Gita got printed. तो अगर उस जो रिकॉर्ड था उसके माध्यम से भगवत गीता प्रिंट हुई थी पब्लिश हुई थी. Prabhupada took two devotees who had previously had experience in printing, and he said, "Go find someone to print Bhagavad Gita." तो प्रभुपाद जी ने दो भक्तों को लिया जिनका प्रिंटिंग में प्रकाशन में कुछ थोड़ा अनुभव था उनको लेकर बोला कि जाओ ढूंढ के लाओ अगर कोई सहायता कर सकता है प्रकाशन के लिए. They went to all these publishing companies, but no one was interested. तो वो सभी प्रकाशन पब्लिशिंग हाउसेस में गए लेकिन कोई भी रुचि नहीं ले रहा था इस काम के लिए. And then the devotees, very excited, they came to Prabhupada and said, "Someone from Macmillan is ordering one of our records." तो फिर भक्त लोग प्रभुपाद के पास आए तो प्रभुपाद को कहा कि जो मैकमिलन में वो जो ये रिकॉर्ड है जो हमने कैसेट बनाया उसका वो ऑर्डर कर रहे हैं मैकमिलन कंपनी वाले. So Prabhupada told Brahmananda, "You take the record there and we'll see. We'll talk to Macmillan." तो प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद जी को कहा कि आप जाइए उस रिकॉर्ड को लेके जाइए और साथ में उनसे बात करिए कि क्या वो कर सकते हैं प्रकाशन. So he said, "Prabhupada, maybe you should come." He felt like, if Prabhupada's there, I'll be empowered. तो उन्होंने ब्रह्मानंद को कहा प्रभुपाद आप साथ में चलिए. उनको ऐसा लगा कि अगर प्रभुपाद साथ में होंगे तो वो ये काम कर पाएंगे उनको शक्ति अनुभव होगी. He said, "No, you go." तो प्रभुपाद ने कहा नहीं आप जाइए. And he said, "Prabhupada, should I take the manuscript?" तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद क्या मैं पांडुलिपि लेकर जाऊं. Prabhupada said, "No, प्रभुपाद ने कहा नहीं just go." जस्ट जाओ आप जाइए बस. So he went with the record. He saw the big building. He felt like Arjuna here. No, this big building here. I am a little. What am I going to say? तो जब वो उस रिकॉर्ड को लेकर गए देखा बहुत बड़ी बिल्डिंग थी तो उनको बड़ा ये ऐसा महसूस हुआ कि मैं कितना तुच्छ हुआ इतना मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर जाकर. And then he went in and he asked for such and such person, and then he found out he was just a clerk. He was like sorting mail. No. तो जब उन्होंने अंदर जाके पूछा कि फलाने व्यक्ति से मिलना है तो पता चला कि वो तो एक क्लर्क था वहां पे उस कंपनी में जो सिर्फ वहां पे क्या करता जो खत आते थे उसको बस वो लगाता था ऑर्डर में लगाता था. His dream just vanished in air. तो जो ब्रह्मानंद प्रभु उसमें स्वप्न था वो सब हवा हो गया. They said, "Well, at least let me go sell the record." तो उनको लगा कि चलो इस रिकॉर्ड में तो जो एल्बम थी उसको मैं बेच के आता हूँ. I can come back to Prabhupada at least with $2. तो एटलीस्ट मैं प्रभुपाद के पास वापस जाऊंगा $2 लेकर. So he gave the man the record, and he thought, what am I going to say to Prabhupada? तो उन्होंने रिकॉर्ड उस व्यक्ति को दिया फिर वो सोच रहे थे मैं प्रभुपाद को क्या बोलूं. But then one man walked up to check his mail, and the clerk said, "Oh, this is so and so. This is our chief editor." तो उसी समय एक व्यक्ति उस क्लर्क के पास आया अपना चिट्ठी देखने के लिए. तो उस क्लर्क ने ब्रह्मानंद प्रभु को कहा कि ये जो व्यक्ति है ये हमारी कंपनी के चीफ एडिटर हैं मुख्य संपादक हैं. So he introduced him, and Brahmananda said, "Yes, I was hoping to show the manuscript for Bhagavad Gita." तो उन्होंने आपस में परिचय करवा दिया दोनों का. तो ब्रह्मानंद प्रभु ने उनको कहा कि मैं आपको पांडुलिपि दिखाना चाहता हूँ भगवत गीता की. And said, "Bhagavad Gita? तो उस मुख्य संपादक ने कहा भगवत गीता You have Bhagavad Gita?" आपके पास भगवत गीता है.
he said, we're doing a series on Eastern classics, and the one we're missing is Bhagavad Gita. हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम पूर्वी सिद्धांत फिलॉसफी के ऊपर एक सीरीज बना रहे हैं, उसमें हमारे में भगवत गीता मिसिंग है. They said, immediately go bring your manuscript. तो उन्होंने कहा कि जल्दी जाइए अपनी पांडुलिपि लेकर आइए. So he ran back to Prabhupada thinking, tell Prabhupada he'll be so excited. तो वो भाग कर गए और वो थे कि प्रभुपाद को वो बहुत ही उत्साहित थे प्रभुपाद को बताने के लिए. And he told Prabhupada, he said, Prabhupada said, all right. तो प्रभुपाद को जब उन्होंने बताया तो प्रभुपाद ने नॉर्मल कहा, हाँ ओके ठीक है. And Prabhupada knew. Prabhupada knew that तो प्रभुपाद this was जानते Krishna's थे, arrangement. प्रभुपाद जानते थे ये कृष्ण का ही प्रबंध है सब कुछ. But he wanted to empower his devotee. बट वो अपने भक्तों को एम्पावर मींस शक्ति आवेशित करना चाहते थे. And because he had full faith in Prabhupada, even though he had himself doubted he could do anything, but he went on Prabhupada's behalf and he became successful. क्योंकि उनको ब्रह्मानंद प्रभु को प्रभुपाद पे पूर्ण विश्वास था, लेकिन उनको अपने पे विश्वास नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन प्रभुपाद के कहने पर वो गए, इसलिए वो कर पाए. So this is how we represent the spiritual master. हमें इस तरह से हम आध्यात्मिक गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं. We don't know if we'll have success or failure. हमें नहीं पता हमें सफलता मिलेगी या असफलता, But we do it as a matter of duty. लेकिन हम कर्तव्य रूपेण इसको करते हैं. Srila Prabhupada said that we are not attached to the result. प्रभुपाद जी कहते हैं हम फल के प्रति आसक्त नहीं हैं. We want the best result. हमें अच्छे से अच्छा परिणाम चाहिए. And we will strive for the best result. हम इसकी आशा भी रखेंगे, अच्छे से अच्छे परिणाम की आशा रखते हैं. But whatever comes, we accept it as Krishna's mercy. लेकिन जो भी आता है, जो भी मिलता है, हम उसको कृष्ण प्रसाद समझकर स्वीकार करते हैं. And Prabhupada said, therefore you approach people with these books, and that is your duty. इसलिए आप लोगों को पुस्तक के साथ के पास लेकर जाइए, ये आपका कर्तव्य है. But ultimately Krishna will decide. लेकिन वास्तव में और कृष्ण ही निर्णय करेंगे क्या करना है. So here it says that the Lord takes everything, gives everything to the devotee and takes everything away. तो यहाँ पर बताया गया कि कृष्ण ही सब कुछ प्रदान करते हैं भक्त को और सब कुछ ले भी लेते हैं. And he even takes away his associates. तो भगवान पार्षद भी छीन लेते हैं. Just like Narottam Das Thakur, he sings that now all the associates of Lord Chaitanya and all of his associates have left. जैसे नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं भजन में कि अब चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी पार्षद जा चुके हैं. And therefore he prays, Karuna na hoibi kandiya kandiya. No, without the mercy of the spiritual master, what hope do I have? तो इसलिए प्रार्थना करते हैं करुणा ना होई बे कांदिया कांदिया कि कैसे आध्यात्मिक गुरु की कृपा के बिना मैं क्या करूंगा. So Krishna takes away his dear devotees because he wants them to join him again in his association. तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों को छीन लेते हैं, वापस बुला लेते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनका वो भगवान का संग करें उनके धाम में. And therefore we should accept that arrangement with great enthusiasm. इसलिए भगवान के इस प्रबंध को हमें पूरे उत्साह के साथ स्वीकार करना चाहिए. Of course, someone like Arjuna, who's so intimately related to the Lord, they cannot bear that separation. तो लेकिन मुख्यतः देखें अगर अर्जुन जैसे कोई पार्षद हैं जो निकट पार्षद है भगवान के, वो इस प्रकार के विरह को सहन नहीं कर पाते हैं. But when our spiritual master or great devotees leave our association, this is to bring us to the point where we can have that association. तो लेकिन हाँ कोई शुद्ध भक्त या कोई हमारे आध्यात्मिक गुरु जब चले जाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम फिर हमें उस एसोसिएशन संघ के लिए when we lose the association of spiritual master or our great devotees, this is to bring us to the point of getting Krishna's association.
तो लेकिन अगर कोई हमसे आध्यात्मिक गुरु या किसी शुद्ध भक्त की संग छीन जाता है तो हमें इस बिंदु तक लाने के लिए होता है ताकि हम कृष्ण का संग प्राप्त कर सकें। This is the greatest opportunity we have in life. तो ये एक बहुत ही उच्च अवसर हमें प्रदान होता है इस जीवन में। Because just with the same intensity that Arjuna felt the absence of the Lord, when we have the absence of the spiritual master, we should feel this is the greatest opportunity for me to actually perform the highest service. तो जैसा मेरे यहाँ पर अर्जुन को अनुभव हुआ, उसी प्रकार से जब आध्यात्मिक गुरु चले जाते हैं तो हमें भी अब ये सोचना चाहिए कि अब ये मेरे पास ये अवसर है कि मैं कृष्ण की अच्छे से सेवा कर सकता हूँ। And the spiritual master will empower us. और आध्यात्मिक गुरु मुझे शक्ति प्रदान करेंगे। Srila Prabhupada said that the greatest desire of the spiritual master is that the disciple becomes more prominent than him. तो आध्यात्मिक गुरु की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि उनका जो शिष्य है उससे गुरु से भी आगे निकल जाए। Of course, the disciple is not thinking, "Let me become more prominent." लेकिन शिष्य को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं गुरु से आगे निकल जाऊं। Because even if whatever he does, he thinks this is the mercy of Sri Guru and Gauranga. तो शिष्य जो भी करता है वो हमेशा यही सोचता है कि ये गुरु और गौरांग की कृपा से संभव है। So, and it also says that these powers that Krishna gave to Arjuna were like emergency powers. यहाँ पे एक और बताया गया कि ये जो शक्तियां अर्जुन को भगवान ने दी वो आपातकालीन शक्तियां थी। Otherwise, it states at the very end of the 10th canto, it says that some Dorabir that Krishna destroyed the enemies like Kamsa and the impious kings with his own arms. जैसे दशम स्कंद के अंदर बताया गया है कि भगवान ने कृष्ण ने अपने जो कंस जैसे और कई राक्षस जो है अपने भुजाओं के बल पर ही मार दिए। But that his devotee, those arms are actually his devotees. एक्चुअली देखा वास्तविक में जो उनकी भुजाएं हैं वो जो भक्त हैं भगवान के वही उनकी भुजाएं हैं। So this is extraordinary powers. ये बहुत ही अद्भुत शक्तियां हैं। But Arjuna doesn't need those powers to go back home, back to Godhead. लेकिन अर्जुन को ऐसी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है भगवत धाम जाने के लिए। So the point that Srila Prabhupada is making is that Krishna may give us a certain degree of intelligence or certain abilities, but we should not think that those abilities are necessarily what will take us back home, back to Godhead. तो प्रभुपाद यहाँ बताना चाह रहे हैं कि भगवान हमें कुछ बुद्धि या कुछ क्षमताएं प्रदान करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बुद्धि या क्षमताएं भगवत धाम जाने के लिए हैं। What will take us back home, back to Godhead is the pure chanting of the holy name. तो हमें भगवत धाम क्या लेकर जाएगा? शुद्ध हरि नाम। And that is something that Krishna leaves us the responsibility to surrender to the holy name. तो ये जो कर्तव्य है, ये कार्य है भगवान हमारे ऊपर छोड़ गए हैं कि हरि नाम के प्रति शरणागत होना। Of course, some people may be kripa siddhi. हो सकता है कुछ लोग कृपा सिद्ध हो। By doing extraordinary service for the spiritual master, that they may get some special mercy, even if their sadhana was not on the highest degree. तो हो सकता है कि उनकी साधना बहुत उत्तम स्तर पर नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे वो कार्य करते हैं, कुछ ऐसा सेवा करते हैं कि उनको श्री गुरु की अहेतु की कृपा प्राप्त हो जाती है। But Srila Prabhupada said, we don't aspire for that. लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं हम इसकी आशा नहीं रखते हैं। Just like someone may get an honorary degree from a university because they're so accomplished intellectually. जो ऐसा देखा जाता है कई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं और बहुत कुछ कार्य किए होते हैं, तो कोई विश्वविद्यालय उनको ऐसे ही सम्मान में डिग्री दे देता है। But it doesn't mean that everyone should aspire for an honorary degree. तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी को इसी चीज की आशा रखनी चाहिए कि हमें भी ऐसी कोई डिग्री मिल जाएगी। But whatever we get, we should make sure that we exclusively offer it to Krishna. तो इसलिए हमें जो भी प्राप्त हो तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम वो कृष्ण की सेवा में लगाएं।
And also, the last point I want to make, also we should see Krishna in every manifestation of power or opulence or beauty. तो और एक अंतिम पॉइंट मैं और बताना चाहता हूं कि कोई भी बल है, सौंदर्य है, कुछ भी है, उस सब में जिस प्रकार के भी विस्तार है, सब में कृष्ण को देखना चाहिए. Just like one devotee asked Srila Prabhupada, he said, Srila Prabhupada, there are so many of the female devotees are very beautiful, it may bewilder my mind. तो एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा कि ये जो आपकी शिष्या हैं, जो माता जी हैं, वो बहुत सुंदर हैं, तो वो मेरे मन को विचलित करती हैं. And so he said, and what to do? The ladies sometimes they're thinking, should I dress very nicely, or should I just try to like we see sometimes in Vrindavan, cover their head, put the covering in their mouth. Should all the ladies run around like that? तो उन्होंने कहा कि कई बार जैसे जो स्त्रियां हैं बहुत सुंदर तरीके से तैयार होती हैं और कई बार नहीं होती हैं. जैसे आपने देखा होगा वृंदावन में कई बार वो ऐसे घूंघट निकाल के और घूंघट को मुंह में दबा लेती हैं, पूरा ढक लेती हैं अपने आप को. And Prabhupada said, no, they should offer their beauty to Krishna. तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, स्त्रियों को अपने सौंदर्य को कृष्ण को समर्पित करना चाहिए, Just like the gopis. जैसे गोपियों ने किया. But they should not think that they are gopis. No. और उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो गोपियां हैं. And he said, because when you see beauty, just remember that it's Krishna's beauty. लेकिन जब भी आप कोई सौंदर्य देखें तो ये स्मरण रखें कि वो कृष्ण का दिया है. And that same devotee, later he was walking on the beach in Los Angeles with Srila Prabhupada, morning walk. तो बाद में वही शिष्य एक बार लॉस एंजलिस में सुबह बीच पर प्रातःकाल की सैर कर रहे थे प्रभुपाद के साथ. And the sun was just coming up, and he said, Prabhupada, isn't the sunrise is so beautiful? तो वहां पे उसमें सूर्य उदय हो रहा था, तो शिष्य ने कहा प्रभुपाद देखिए सूर्य उदय कितना सुंदर है. And Prabhupada said, no. प्रभुपाद ने कहा नहीं. And he said, but Srila Prabhupada, isn't that beauty coming from Krishna? तो उसने पूछा प्रभुपाद क्या ये सुंदरता कृष्ण से नहीं आ रही? Prabhupada said, yes. प्रभुपाद ने कहा हाँ. But you were not seeing it that way. लेकिन तुम उसको उस तरह से नहीं देख रहे हो. You are wanting to enjoy it. क्योंकि तुम इसका भोग करना चाहते हो. You have to offer it to Krishna. लेकिन तुम्हें इसको कृष्ण को समर्पित करना है. So this requires practice. No? इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है. See everything as part of Krishna's opulence. सब कुछ कृष्ण के ऐश्वर्य के रूप में देखना, इसके लिए अभ्यास लगता है. And so not only do we offer some special ability to Krishna, but every manifestation of Krishna's potency, we have to see that it's simply coming from him and it's simply for his service. तो ऐसा नहीं कोई अलग से कोई मुख्य क्षमता हमारे अंदर है, उसी को भगवान की सेवा में लगाना है. लेकिन जितने प्रकार के ऐश्वर्य हैं या उसके विस्तार हैं, वो सब कृष्ण से ही आते हैं और उनको कृष्ण की सेवा में ही लगाना है. So these are some thoughts on this particular verse. ये मेरे कुछ विचार थे श्लोक पर. किसी का प्रश्न, कोई टिप्पणी, कोई व्याख्या, कुछ? एनी क्वेश्चन? ये माइक है. यस महाराज. Thank you very much, Maharaj. Very inspiring and enlightening lecture. Maharaj said that whatever abilities we have, we should not feel that this will take us back to Godhead. Only the attachment to the holy name will take us back to Godhead. But whatever abilities we have, in something we are very good, that only gives us absorption in Krishna consciousness. And तो प्रश्न है उनका, आप ही बता दीजिए. उनका प्रश्न है कि जैसा महाराज ने कहा कि जो भी हमारे अंदर क्षमताएं हैं वो पर्याप्त, उस पे हमें निर्भर नहीं रहना कि भगवत धाम जाने के लिए चाहिए शुद्ध नाम. लेकिन जो हमारे अंदर क्षमताएं हैं उसी के द्वारा हम कुछ अच्छी सेवाएं या कृष्ण भावना में रुचि ले पाते हैं. तो इसको कैसे समझे? that absorption helps us to develop, to chant better. और उस प्रकार से जब उस क्षमता के साथ हम सेवा करते हैं तो वो हमें हरि नाम के प्रति
और अच्छे से हरिनाम करने के लिए प्रेरित करती है। We see devotees, if they are not properly engaged, they are not able to chant also. हाँ, अगर जो भक्त हैं अगर पूर्णता से सेवा में संलग्न नहीं है तो ढंग से जप भी नहीं कर पाते हैं, तो इसको कैसे समझे? Therefore, we have leaders like you इसलिए हमारे पास आप जैसे नेता हैं to engage them properly. ताकि उनको अच्छे से सेवा में लगा सके। सेवा में लगाने के लिए आप जैसे नेता हमारे पास हैं। Otherwise, what's the use of being a leader if we can't engage people properly? तो अदरवाइज नेता बनने का क्या अर्थ है अगर हम लोगों को या भक्तों को सेवा में नहीं लगा सकते? Prabhupada said that many times, especially about the Americans. तो प्रभुपाद ने ऐसा बहुत बार कहा, लेकिन अमेरिकी भक्तों के लिए स्पेशली कहा। He said, "What's the use of being an American if you can't do something special?" वो कहते हैं आपके अमेरिकी होने का क्या लाभ अगर आप कुछ स्पेशल नहीं कर सकते? Point is, what's the use of being anything if we can't use it properly in Krishna's service? तो कोई भी चीज या कोई भी बनने का, किसी भी प्रकार का व्यक्ति बनने का क्या लाभ अगर हम भगवान के लिए कुछ कर नहीं सकते? But even as leaders, we simply have to do our best to try to inspire the devotees by our example. तो नेता बनकर भी हमें ये प्रयास करना चाहिए जितना से ज्यादा संभव हो सके ताकि हम दूसरे भक्तों को प्रेरित कर सके। It's not enough just to give an instruction. सिर्फ आदेश या उपदेश देना पर्याप्त नहीं है। One has to show how to obey. लेकिन उनको दिखाना भी पड़ेगा कि आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। But some, if you do your best and people don't want to be engaged, then what can you do? आप अपना सर्वश्रेष्ठ कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग सेवा में नहीं लगना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? One time, one leader was saying, "Srila Prabhupada, I've instructed this devotee so much, but he doesn't respond." तो एक बार प्रभुपाद जी को एक लीडर ने कहा कि प्रभुपाद मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन ये कुछ आगे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कुछ करना नहीं चाहता। He doesn't want to follow. वो फॉलो नहीं करना चाहता। Prabhupada said, "Then he is not my disciple." तो प्रभुपाद ने कहा फिर वो मेरा शिष्य नहीं है। No. Otherwise, disciple means to follow. No. क्योंकि शिष्य का मतलब है जो अनुसरण करे। Doesn't mean I get initiation and I do what I want. इसका मतलब ये नहीं कि दीक्षा प्राप्त कर ली फिर मैं जो मर्जी करूं। I got my certificate, I got my diploma. No. ऐसा नहीं कि मुझे कोई एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मिल गया है बस हो गया। Now I'm independent. अब मैं स्वतंत्र हूँ। But initiation means you become the servant of the spiritual master. दीक्षा का मतलब है कि आप गुरु के सेवक बनते हैं। Not the postgraduate. No. ना कि आपको कोई स्नातकोत्तर डिग्री मिल जाती है I am Dr. So and so. No. कि मैं अब डॉक्टर सो एंड सो बन गया हूँ। So we have to show, and especially we have to show by sincerely chanting the holy name and giving devotees that inspiration. हमें करके दिखाना पड़ेगा, हमें बहुत ही गंभीरता से जप करके उनको दिखाना पड़ेगा ताकि वो उससे प्रेरित हो सके। Because ultimately this whole movement is about chanting the holy name. क्योंकि ये पूरा जो आंदोलन है क्या है, हरि नाम के जप पर केंद्रित है। And giving others the opportunity to chant. तो दूसरों को अवसर देना जप करने का। But if you're not chanting properly, how can you expect that they will do so? लेकिन अगर आप ही अच्छे से जप नहीं कर रहे हैं तो आप ये कैसे आशा कर सकते हैं कि दूसरे अच्छे से करेंगे? Because ultimately it depends on Paramatma in the heart of the individual to respond. क्योंकि ये निर्भर करता है, सबके हृदय में जो परमात्मा है उस पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेगा। So if Paramatma in your heart sees that you're not responding, why should he make the other person respond? तो परमात्मा आपके हृदय में देखेंगे, अगर आप ही अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले के हृदय में जो परमात्मा है उसको नहीं प्रेरित करेंगे करने के लिए। Because you can't give something you don't have. क्योंकि आप वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। But still the holy name is so merciful that sometimes even if we're not very qualified, the holy name will act. लेकिन हरि नाम इतने कृपालु हैं कि अगर कोई ढंग से नहीं भी कर रहा तब भी वो कृपा दे देते हैं कई बार। But we should do our best to inspire Krishna to inspire others. लेकिन हमें अपना सर्वोच्च प्रयास करना चाहिए ताकि कृष्ण जो है दूसरों को प्रेरित करे हमारे माध्यम से। We should be serious so that Krishna takes us seriously. हमें गंभीर होना चाहिए ताकि कृष्ण भी हमें गंभीरता से ले। Because if we become pure devotees, we don't want to be pure devotees to feel good.
हम शुद्ध भक्त इसलिए नहीं बनना चाहते कि हमें अच्छा लगे. We want to be pure devotees to give Krishna first class service. हम शुद्ध भक्त इसलिए बनना चाहते हैं ताकि हम कृष्ण को उत्तम सेवा प्रदान कर सकें. And when we do that, then Krishna will think, oh, here's my devotee, I must do what he says. तो फिर भगवान देखते हैं, ओ यहाँ मेरा भक्त है तो मुझे वो करना है जो वो कह रहा है. So one may say, why doesn't Krishna do what Arjuna says and stay, and not go away? तो फिर प्रश्न ये आता है कि फिर अर्जुन के कहने पे कृष्ण रुके क्यों नहीं, चले क्यों गए? But Krishna, as Srila Prabhupada mentioned in the purport, he takes his associates with him. हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद जैसे पurport में बता रहे हैं तो उनके पार्षदों को भी साथ में ले गए कृष्ण. Soon afterwards, the Pandavas, one after another, they left. तो उसके बाद एक एक करके पांडव भी चले गए छोड़कर. And Arjuna was the first. अर्जुन सबसे पहले थे. And then the others left. उसके बाद उनके साथ बाकी भी चले गए. So these are personal associates. Just like when Lord Chaitanya left his personal associates, one after another, they left very quickly. तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ से चले गए तो उसके बाद एक एक करके पार्षद बहुत जल्दी ही चले गए यहाँ से. And some of his personal associates, he didn't give them much association. They stayed longer because he wanted them to perform certain services. तो कुछ ऐसे पार्षद भी थे जिनको डायरेक्टली संग प्राप्त नहीं हुआ था चैतन्य महाप्रभु का, वो थोड़े लंबे समय तक रुके क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कुछ और सेवाएं उनके माध्यम से करवाना चाहते थे. And the only thing that kept the gopis alive for 116 years, 114 years, was the hope that Krishna would come back. और एक जो कारण कि 114 साल तक गोपियों को जीवित रखा वो इसलिए ताकि एक आशा रहे कि कृष्ण वापस आ जाएंगे. If they would have gotten this news like Yudhishthir, they would have left in 1 second. लेकिन अगर ऐसा कोई समाचार जैसे युधिष्ठिर महाराज को मिला, गोपियों को मिल जाता, वो तुरंत शरीर त्याग देती. Even Uddhava, that's what he said. He said, "What is the use of living? The snake of time has consumed us." तो जैसे उद्धव महाराज कहते हैं कि ऐसे जीवन का क्या लाभ, क्योंकि एक दिन जो काल रूपी सर्प है हमें निगल लेगा. But because Krishna empowered him to take the message of the Bhagavatam, he remained. क्योंकि उद्धव को भगवान ने शक्ति प्रदान किया, आवेशित किया, इसलिए वो यहाँ रुके रहे और उन्होंने भागवतम का प्रचार किया. But Arjuna couldn't do that. Krishna didn't tell him to remain. तो अर्जुन ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए भगवान ने उनको यहाँ रुकने के लिए नहीं बोला. And so that complete feeling completely empty without Krishna allowed him to go back home, back to God. तो ये जो उनकी जो फीलिंग भावनाएं थी कृष्ण के विरह में, बिल्कुल रिक्त वो महसूस कर रहे थे, यही उनका बल था वापस जाने के लिए. Of course, he's always back home, back to God. तो ऐसा नहीं, वो पहले से ही भगवत धाम में है, Because he's always with Krishna. क्योंकि हमेशा कृष्ण के साथ है. और कोई प्रश्न? आप पूछिए, हिंदी में पूछिए. महाराज, हरे कृष्ण महाराज, दो श्लोक जाति शास्त्र जपस्तपः भगवत भक्ति हीनस्य अपारस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम. आई थिंक हरि भक्ति विलास का श्लोक है. तो आई वांट टू जस्ट क्लियरिफिकेशन फ्रॉम महाराज. There is one verse from Hari Bhakti Vilas. He just quoted. Can you quote again? Ranjanam Lokamanjanam. बहुत बड़ा जाति है, ब्राह्मण है, बहुत जाप करता है, बहुत तप करता है, बहुत अच्छे काम करता है, लेकिन भगवत भक्ति से हीन है, तो उसका सारा कुछ बेकार है. जैसे एक मुर्दे को सजाने से केवल समाज में बाबा मिलेगी, लेकिन उन मुर्दे को कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है. He's just quoting the verse from Hari Bhakti Vilas. Bhagavad Bhakti. Yeah, Bhakti. Yeah, that. Yeah. So he wants more explanation on it. It's just a comment, sorry, no question. Okay, it's a comment. Another question? Yes. He wants. He wants a little more explanation on it.
Yes, without devotional service, all of our qualities that we think are our qualities, which actually Krishna gave us, are just like decorations on a dead body. तो जितने भी कृष्ण के भक्ति के बिना जितने भी गुण हैं जो हम सोचते हैं कि गुण हैं हमारे गुण हैं, लेकिन वास्तविक में कृष्ण के दिए हुए हैं, और कृष्ण के बिना वो सारे किस प्रकार से हैं, जैसे मुर्दे को किसी चीज से सजाया जाता है. That means I think these things belong to me, इसका मतलब कि मैं ये सोचता हूँ ये सारी चीजें मेरी हैं, and therefore I am full of pride. इसलिए फिर मैं घमंडित हो जाता हूँ, घमंड करने लगता हूँ. But that pride is the property of a dead person. हाँ, वो घमंड कैसा है, एक मृत व्यक्ति के समान है, I am spiritually dead. क्योंकि मैं आध्यात्मिक दृष्टि से मृत हूँ. So, and I'm decorating this dead body with, I'm decorating my dead body with useless qualities. और मैं अपने मृत शरीर को जो व्यर्थ के गुणों से सुसज्जित कर रहा हूँ. So, and nothing has meaning without devotional service. क्योंकि इन सब का कोई भी अर्थ नहीं है, इन सभी चीजों का भक्ति के बिना. It will work against us. क्योंकि फिर ये हमारे विपरीत कार्य करेंगे. It will make us proud. It will make us foolish. ये हमें इससे हमें घमंड आ जाएगा और हमें मूर्ख बनाएंगे. No, just like Trump. No. जैसे अभी ट्रम्प है अमेरिका का. He's demonstrating. He's become the Maha Murka. वो हमें दिखा रहे हैं कि ऐसे वो महामूर्ख बन गए हैं. He's demonstrating to the whole world what a fool I am. No. वो सारे विश्व को ये दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा पागल हूँ मैं, मूर्ख हूँ. And he's not even a good fool. He's an uncultured fool. No. तो वो कोई अच्छे मूर्ख भी नहीं है, वो एक असभ्य मूर्ख है. Just like sometimes a fool may dress very nicely and be able to somehow or another cheat others, but he is fully exhibited as a fool, number one. कई बार कोई मूर्ख होता है, वो थोड़ा अच्छे कपड़े पहनकर फिर दूसरों को मूर्ख बना देता है, लेकिन ट्रम्प ने तो पूरी दुनिया को बता दिया कि उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, वो सबसे बड़ा मूर्ख है. But just don't quote me because I may not be able to get back into the country. No. तो इसको बात को ज्यादा फैलाइएगा मत, हो सकता है महाराज फिर अमेरिका में एंट्री ना मिले महाराज को. और कोई? हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम. आगे बोलो. मेरा प्रश्न जो है कल के लेक्चर से था कि जब आपने बताया था कि सची माता जी को चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम नहीं दिया, जबकि हमें बताया जाता है महाराज जी लेक्चर्स में कि जो कृष्ण प्रेम है वो हमारे अंदर सुप्त अवस्था में, हमें गुरु और कृष्ण की कृपा से उसे जागृत करना है. तो महाराज जी इस चीज को कैसे समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण प्रेम को बांट रहे हैं, ये कृष्ण प्रेम क्या है और किस तरह से प्राप्त हो सकता है महाराज जी? His question is, in yesterday's class, you're saying that Chaitanya Mahaprabhu didn't give Krishna Prem to Shachi Mata. But we also heard that the Krishna Prem is dormant in our heart, already is there, and we have to revive it by chanting. So how can we understand what Krishna Prema, how we understand this Leela? Yogamaya. Yogamaya. Yogamaya means that she felt like she didn't have Krishna Prem. योगमाया से उनको ऐसा लगा कि उनके पास कृष्ण प्रेम नहीं है. And because she was not being invited to come and receive. No. क्योंकि उनको बुलाया नहीं, आमंत्रित नहीं किया गया कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए. Of course she is full of Krishna Prem. No. वास्तव में उनके अंदर कृष्ण प्रेम भरा पड़ा है. When Chaitanya Mahaprabhu went to take sannyas, she sat outside of her house. No. तो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने गए तो शची माता घर के बाहर बैठी रही. When the devotees came, she said, "Take this house. The soul of the house has left." तो जब भक्त आए तो शची माता ने कहा ये घर आप लोग ले लो, क्योंकि जो इस घर के प्राण है, जो आत्मा है, वो जा चुकी है. This house has no meaning. इस घर का कोई मतलब नहीं है. So we think, oh, I have my house, and then I go to the temple for Krishna and I have my house. लेकिन हम सोचते हैं हाँ मैं मंदिर में जाता हूँ कृष्ण के लिए, लेकिन मेरा अपना घर भी है. But Shachi Mata thought, this house belongs to Chaitanya Mahaprabhu. I belong to Chaitanya Mahaprabhu. My heart belongs to Chaitanya. क्योंकि शची माता ने कहा ये जो घर है ये चैतन्य महाप्रभु का है, मैं चैतन्य महाप्रभु को बिलोंग करती हूँ, मेरा जो हृदय है वो चैतन्य महाप्रभु का है. But because out of love for Chaitanya Mahaprabhu, she was thinking Advaita Acharya is very cruel. She was just thinking like that. हाँ,
तो लेकिन प्रेमवश चैतन्य महाप्रभु के प्रेमवश वो ऐसा सोच रही थी, सिर्फ सोच रही थी कि अद्वैताचार्य ने बहुत क्रूरता की है। She was thinking that he preached Krishna consciousness to my first son and he took sannyas and left. तो क्योंकि उन्होंने अद्वैताचार्य ने मेरे बड़े पुत्र को कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और वो घर छोड़कर चले गए। And when Vishvambar began to visit, she was very concerned that the same thing is going to happen. Therefore, he is not Advaita, he is Dvaita. तो लेकिन जब विश्वम्बर अद्वैताचार्य के पास जाने लगे तो फिर शची माता को यही चिंता हो गई कि ये भी घर ना छोड़ दे, इसलिए जो अद्वैत है वो अद्वैत नहीं है, वो द्वैत है। But this was out of intense love for Chaitanya Mahaprabhu. ये वो लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो उनका गाढ़ प्रेम था उसके वशीभूत होकर ऐसा सोच रही थी। The same thing as Jagannath Mishra, when he had a dream that his son, Vishvambar, was going to take sannyas, he took him out of school. तो ऐसे ही जगन्नाथ मिश्र को जो ऐसा स्वप्न आया कि उनके जो पुत्र हैं विश्वम्बर संन्यास ले लेंगे, तो उन्होंने उनको स्कूल से निकलवा लिया, मतलब स्कूल से छुड़वा दिया। If he learns too much Shastra, then he'll become renounced and he'll leave. Therefore, let him be a fool. तो उनको लगा कि शास्त्र अगर ज्यादा पढ़ लेगा तो ये भी सब चीजें त्याग करके सन्यासी बन जाएगा, तो इसलिए मैं उसको स्कूल से निकाल लेता हूँ। ठीक है, उसको मूर्ख रहने दो, कोई बात नहीं। Just like in Bengal, if anybody takes sannyas, everybody thinks, oh, horrible. No. तो अगर बंगाल में कोई सन्यास ले लेता है तो सब लोग सोचते हैं, ओ ये तो बहुत भयानक है, This is our family member, should not take sannyas. ये हमारा परिवार का सदस्य है, इसको सन्यास नहीं लेना चाहिए। That's why Bengali mothers and mothers in general, they're a little concerned if their son becomes a brahmachari. No. तो जो बंगाली माताएं होती हैं तो बहुत चिंतित हो जाती है जब उनका बच्चा अगर ब्रह्मचारी बन जाए। He's going to leave home and never come back. और ये घर छोड़ देगा, कभी वापस नहीं आएगा। No. So, and what to speak of when it comes from Shachi Mata. तो फिर क्या कहना अगर ये भाव सची माता के हृदय में है But तो। Yogamaya covered her like this, so Chaitanya Mahaprabhu could explain the gravity of aparadha. लेकिन योग माया ने उसको आच्छादित कर दिया ताकि चैतन्य महाप्रभु ये हमें अपराधों की गंभीरता को समझा सके। There was all that whole thought. It was just a thought in her mind, but Chaitanya Mahaprabhu wanted to show even a thought, even though there's not a direct offense, it will create an offense. तो सची माता के मन में सिर्फ विचार ही आया था, तो चैतन्य महाप्रभु ये दिखा रहे हैं कि बोलना तो बहुत दूर की बात है, अगर विचार भी आता है किसी के प्रति ऐसे तो वो कितना गलत है। Okay. थैंक यू महाराज। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू सो मच महाराज जी। महाराज जी क्वेश्चन है कि टाइम बहुत कम है हमारे पास, थोड़ा पास में। हरे कृष्णा, टाइम बहुत कम है अपने पास में, तो कैसे हम ब्रज प्रेम कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं और साथ में गुरु महाराज को और वैष्णव को भी प्रसन्न रह सकते हैं। हरे कृष्णा। She is saying that the time is already very less, and how can we get Krishna prema? How can we please Guru and Vaishnava? Because the life is too short. The mercy of Chaitanya Mahaprabhu is very great. चैतन्य महाप्रभु की कृपा बहुत महान है, It doesn't require much time. उसके लिए ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, Very powerful. बहुत शक्तिशाली है। Can act very quickly and consume all of our negativity and material consciousness. तो हम बहुत तीव्रता से अपने जो भी नकारात्मक विचार हैं, जो हमारी भौतिक बुद्धि है, उसको हम निराकरण कर सकते हैं इससे। And it will act more quickly if we associate with the devotees. और भी जल्दी अगर हम कर सकते हैं अगर हम भक्तों का संग करें। So we should maintain ourselves in the association of the Vaishnava, as Chaitanya Mahaprabhu said, quoting from Shastra, that Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavata Shravana. If we do these three things, then His mercy will act very quickly. तो जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने आप को भक्तों के संग में रखो, जैसे मैंने कहा साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, ये तीन चीजें अगर करते हैं तो बहुत तीव्रता से ये चीजें कार्य होता है। And also worshiping the deity. और अर्चा विग्रह की सेवा। Then
we'll act very quickly. तो हम बहुत तेजी से प्रगति करेंगे। महाराज हरे कृष्णा। Actually, a short life in Kali Yuga is better because it gives us less opportunity to fall victim to Maya. वो कलयुग में जो हमारा जो छोटा जीवन है, एक तरह से ये वरदान है, क्योंकि इससे हमें कम ये चांस मिलता है कि बार बार माया में गिरे। Just like Muni Putra Jivana, that once you have Krishna consciousness, it's better to have a short life, go back home, back to Godhead. लेकिन मुनि पुत्र जीवना, इससे अच्छा तो कम जीवन हो लेकिन कृष्ण भावना भावित हो ताकि हम जल्दी वापस चले जाएं। Or like Muni Putra Jiva Na, and like King Kulakshakara, he was praying, now that my mind is intertwined in the lotus feet of Krishna, let me leave this body. जैसे कुलशेखर महाराज भी कहते हैं कि अब मेरा जो मन है वो आपके चरणों के प्रति पूर्ण समर्पित है, केंद्रित है, तो अभी मुझे शरीर त्यागने, मैं चाहता हूँ मैं अभी शरीर त्याग दूं। Because we don't want the devotees leaving the body in, while they're chanting their japa, and when they're young, we should perfect that. तो हम नहीं चाहते कि यंग भक्त माला करते शरीर त्याग दें, हमने भक्तों की आवश्यकता है कि अभी वो मैच्योर भी हैं। We should understand, however long we live, whether it's long or short, the recommended process for that age will be perfect to fill that life with spiritual consciousness. चाहे हम लंबा जिए चाहे छोटा जिए, लेकिन जीवन का सार यही है कि हम अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित बनाएं, भक्ति में बनाएं। Krishna makes perfect arrangement for everyone. भगवान ने सबके लिए एक बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है, हर युग के लिए भगवान ने प्रबंध किया हुआ है। और एवरी एज और इवन एज, ओके। Hare Krishna Maharaj, thank you for the wonderful class. Maharaj, my question was from yesterday's class. Yesterday you mentioned about how the Yaduvanshis, they were, because of the curse which was received, so they were fighting among themselves and they all killed themselves and they left the planet. So during that situation, it may be that someone outsider can perceive it as that it was the fault of that boy who got the curse. So I mean, he can develop that offensive mentality towards that boy, that why did he do so. But after all, it was Krishna's arrangement to take his associates back. So during that period, how to avoid this sort of mentality towards anyone, that this is not his part, it was arrangement by Krishna. It was not an आप ट्रांसलेट करो हिंदी में। हरे कृष्णा महाराज, कल आपने क्लास में जैसे बताया था कि यदुवंशी सब डिसअपियर कर गए थे, तो वो एक बच्चे की गलती के कारण ऐसा हुआ था। तो कल वो एक बच्चे की मतलब बच्चे की गलती की वजह से हुआ था, लेकिन वहां पे जो अपराध रहा भी, तो वहां पे कोई जो भक्त रह सकते हैं वो ये सोच सकते हैं कि इस बच्चे की गलती थी, तो इस मानसिकता से कैसे वो बच सकते हैं, ये समझ के कि ये भगवान की ही योजना है। Because Samba is an eternal associate of the Lord. क्योंकि जो सांब है वो भगवान के नित्य पार्षद हैं। Therefore, he can only act out of Yoga Maya. If he's doing something wrong, it must be Yoga Maya. अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो योग माया के प्रभाव से ही कर रहे हैं। Even after Parikshit Maharaj, after he put the snake around the neck of Samkhya Rishi, he thought, why did I do that? और परीक्षित महाराज ने जो शमीक ऋषि के गले में सांप डाल दिया, तो उसके बाद वो सोच भी रहे थे मैंने ऐसा क्यों किया। I'm not capable of doing such a thing. मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। And he thought it must be Krishna's arrangement. तो उन्होंने सोचा ये भगवान का ही कोई कार्य होगा इसमें। He himself, he knew, I can't do something like that. वो खुद सोच रहे थे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। I'm the emperor. मैं एक राजा हूँ। And then, because he thought that way, he immediately understood that this curse is Krishna's arrangement. क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे तो तुरंत समझ गए कि ये श्राप मिला है ये भगवान की ही योजना है।
But we should not think that if we do something wrong, it's Krishna's arrangement. पर No. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ भी गलत करें और सोचें कृष्ण की योजना है। But we should understand anything that's wrong that's happening to me is Krishna's arrangement to correct my misunderstanding. No. तो अगर हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की योजना है, ताकि मैं ये समझ सकूं कि मैं या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उससे गलत फहमियां मेरी दूर हो। Sometimes we're thinking, what could I do? This is all happening by the will of the Lord. No. तो कई बार हम सोचते हैं मैं क्या करूं, ये सब कुछ तो भगवान की योजना से, इच्छा से हो रहा है। The three modes of nature are created by Him, and therefore, if they influence me, it's His arrangement. देखिए, तीन गुण तो भगवान ने बनाए हैं, अगर तीन गुणों के प्रभाव में कुछ हो रहा है तो ये भगवान की योजना है, मैं क्या करूं? Therefore, let me go with the modes. No. तो इसलिए जो जैसा हो रहा है होने दो। Some people think like that. No. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, It's all, it's all the Lord. No problem. No. और सब भगवान का किया है, कोई बात नहीं है। No. But a devotee, that's why Krishna gives us Bhagavad Gita, इसलिए भगवान हमें भगवत गीता देते हैं, Srimad Bhagavatam, श्रीमद् भागवतम देते to हैं, understand how to behave. No. ताकि हम समझ सके हम कैसे व्यवहार करें, And we can go beyond these modes of nature. ताकि हम तीन गुणों से परे जा सकें। Prabhupada gave the example that if one is Krishna conscious, it's not that the modes of nature will not act. तो प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई कृष्ण भावना भावित है, इसका मतलब ये नहीं कि तीन गुण उस पे लागू नहीं होंगे। But it's like being in a boat. No. तो पर इसका मतलब है कि वो एक नाव में है। In a boat, you feel the movement of the waves, but you don't get wet. हाँ, तो नाव में आपको लहरों के झटके तो लगते हैं, लेकिन आप गीले नहीं होते हैं। So we can feel the modes, but if we understand how they're working and the nature of those modes, we will not be affected. लेकिन अगर हम ये समझ जाते हैं कि तीन गुण कैसे कार्य करते हैं, उनके क्या प्रभाव होते हैं, तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। कैसे कृष्ण के निर्देशन में कार्य करते हैं, तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। So now we'll have to stop here. मुझे अभी समय हो गया है, महाराज को यहीं खत्म करना है। महाराज कह रहे हैं Thank you all very much for your kind attention. थैंक यू। Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti कृष्ण वृंद की जय। Jai Gaur Premanandi. हरि हरि बोल। Hare Krishna. His Guru Prasad Swami Maharaj ki jai. So I want to thank Maharaj for the kind association, and I request that every time you visit Vrindavan, please give your association Shri Radha Govinda Temple, ISKCON रुक्मिणी विहार। आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। दो हम सूचनाएं आपको देना चाहते हैं। पहला, यहाँ अनेक भक्त हैं पुणे से, कानपुर से, कुरुक्षेत्र से, रोहिणी से, शिमला से, हिसार से और अन्य स्थान से। तो आप सब भक्त यहाँ पे आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि यहाँ पे लगभग 12-13 हमारे पास रूम्स भी हैं, जहाँ पे आप छोटे टूर्स लाना चाहें तो रह सकते हैं। प्रसादम है और क्लास के लिए हॉल है, और जैसे ISKCON के हर प्रोग्राम्स रहते हैं, मंगल आरती, श्रृंगार आरती, तो जब भी आप वृंदावन आए तो यहाँ पे आप रह सकते हैं, अपना संग दे सकते हैं, छोटे ग्रुप्स में या इंडिविजुअली कभी भी आए। और हमारे गोलोक गौर प्रभु हैं वहाँ पे, तो आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं और अपना संग प्रदान कर सकते हैं।